Good morning, dear students. Today in our class, we will do binary addition. For binary addition, you have to apply this table. Now, there are four cases in the binary addition. In case 1, when we add 0 and 0, then resultant will be 0. It is quite obvious. And when we add 0 and 1, then resultant will be 1. When we add 1 and 0, the resultant will be 1. And at the last case and the most important case, when we add 1 and 1, then result will be 10. You can say 10. And for 10, sum will be 0 and 1 will be carry. We will write 0 and we will carry forward 1. Like if we add 5 plus 5, then what will be the result? 10. And we will, what we do, we will write 0 and we will carry 1. Okay, so this is our question, and here I will add these two numbers. This is number 1 and this is number 1 and this is number 2, and I will add these two number and I will write the sum on that position. Okay, now when we add 1 plus 1, 1 plus 1 means I will write 0 and I will carry 1. So I will write 0 here, and after that I will carry 1 here. Now 0 plus 0, 0, and 0 plus 1, 1. So I will write 1 here. Now again 1 plus 1, 10, and in 10 I will write 0 here and I will carry forward 1 here. Now 1 plus 1, 10, and 10 plus 0, 10. So I will write 0 here and I will carry forward 1 here. Then 0 plus 0, 0, and 0 plus 1, 1. I will write 1 here. There will be no carry. Now 1 plus 1, 10 here. So I will write 0 here and I will carry forward 1 here. So here you can see 1 plus 1, 10, and 10 plus 1, 11. I will write 1 here and 11 because that is the last column, so there is no carry, so I will write 1 here. So this is our answer. Okay, now you can see that answer as well. Here this is our question: 0 1 0 1 and 0 0 1 1. So what we are doing here, we are adding 1 plus 1, that is 0, and we are carrying forward 1. Okay, so 1 is carry, and in our question 1 plus 0 is 1 and 1 is carry, then it will be again 0 and again it will carry 1. Okay, now 1 plus 0, 1, and 1 was and carry was 1. So 1 plus 1 is 0 and again we carry 1. Then 0 plus 0 is 0 and 1 was the carry, then 0 plus 1 is 1. So at the rest we write 1. Okay, if you have any doubt, then you can cross check your answer as well. You can convert this number into decimal, you can convert this number into decimal, you can convert the result into decimal. Then addition of binary will be same as addition of decimal. Okay, but this is only for cross check. Okay, this is not the method. Now again there are some more example as well, and you can see and you can observe that answer as well. Okay, so this is it for binary addition. This is your homework. All these additions you have to do in your notebook and you have to give me the answer as well. Now next is, now students, there are basically three encoding system in our syllabus. One is ASCII, second is SCII, and third is Unicode. Now what are these encoding system and what is the use of this encoding system? Now students, listen very carefully. Initially हुआ क्या, जब कंप्यूटर डेवलप करना स्टार्ट किया तो हर कंट्री ने एक अपना इनकोडिंग सिस्टम बनाया. नाउ स्टूडेंट,
वर्ड इनकोडिंग सिस्टम क्यों बनाया, बिकॉज ये हम सबको पता है कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1। सो हम जब टाइप करते हैं तो 0 एंड 1 पे टाइप नहीं करते। लाइक इतना सब कुछ मैंने जो टाइप किया हुआ है ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने टाइप किया हुआ है, बट कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वो सिर्फ किसको अंडरस्टैंड करेगा, 0 एंड 1 को। ओके, सो ऑल्दो हम क्या कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर राइटिंग ऑन इंग्लिश, हिंदी एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस, बट एट द एंड कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर रहा है। तो हो क्या रहा है कि जितने भी लेटर हम टाइप कर रहे हैं एट द एंड में जाके वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। ओके, सो हर कंट्री ने क्या किया, इनिशियली क्या हुआ, हर कंट्री ने जब कंप्यूटर बनाया तो हर कंप्यूटर को जब उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या किया, अपना अपना एक इनकोडिंग सिस्टम डेवलप किया। उस इनकोडिंग सिस्टम का मीन्स क्या था, उन इनकोडिंग सिस्टम में क्या था, उन्होंने ए के लिए कोड बनाया कि ए जब कंप्यूटर में कन्वर्ट होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, बी जब कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो हर किसी लेटर और हर किसी सिंबल के लिए क्या था, एक डिफरेंट डिफरेंट कोड उन्होंने डिफाइन किया, और उन्हीं कोड को क्या बोला, उन्होंने इनकोडिंग सिस्टम बोला। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, जब कोई कंट्री अपनी कंट्री के लिए कोई इनकोडिंग सिस्टम डिसाइड कर रही है तब तक तो ठीक है, बट लेट अस सपोज हमारी कंट्री ने, इंडिया ने एक इनकोडिंग सिस्टम बनाया जिसमें ए का मीनिंग है 10। मैं यहाँ पर बाइनरी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 10 बात कर रहा हूँ। 10 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो ही उसका कोड होगा। तो तो लेट अस सपोज ए का मीनिंग है 10 एंड 1 का मीनिंग है 34। बट वहीं अगर अमेरिका में बात करो, उन्होंने जो अपना इनकोडिंग सिस्टम बनाया वहां पर उन्होंने क्या किया कि ए को मान लिया उन्होंने 32 और 1 को मान लिया 10। ओके, तो जब कोई मैसेज इंडिया से अमेरिका गया तो वहां पर क्या हुआ, वहां का इनकोडिंग सिस्टम चेंज है, तो वहां क्या बन जाएगा, ए 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। बिकॉज कंप्यूटर तो 0 एंड 1 समझ रहा, वो ए और 1 तो नहीं समझ रहा है। तो वहां पर क्या होगा कि ये इंटर जो भी इनके जो इनकोडिंग स्कीम है, बिकॉज वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो उन्होंने क्या किया, हर क्योंकि देखो एट द एंड में कंप्यूटर में क्या ट्रांसफर हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है, ए और 1 नहीं ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर क्या हुआ है, 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट ट्रांसफर हुआ है, 32 का बाइनरी इक्विवेलेंट ट्रांसफर हुआ है। तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में वहां पर इंटरचेंज हो जाएंगे, जिससे क्या हो पाएगा कि कंट्री टू कंट्री जो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट मीन्स अगर एक मैसेज हम इंडिया से अमेरिका सेंड करना चाहते थे तो वो वहां पर सेंड नहीं हो पाएगा, बिकॉज उनकी जो इनकोडिंग स्कीम है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इन सब के सोल्यूशन के लिए क्या हुआ, एक यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम लॉन्च हुई जिसको बोला आस्काई, दैट स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, ये एक यूनिवर्सल इनकोडिंग स्कीम थी जहां पर जो जितने भी हमारे कीबोर्ड्स में लेटर हैं, सारे के सारे कीबोर्ड्स के लेटर्स के लिए एक यूनिफॉर्म कोड बनाया गया। जैसे लेटर सपोज ए का कोड क्या है, 65। तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड ए का कोड कितना रहेगा, 65 में रहेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री। ओके, सो एक यूनिफॉर्म कोड हमने डेवलप किया फॉर द लेटर्स इन आवर कीबोर्ड। तो जितने भी हमारे कीबोर्ड्स में लेटर होते हैं, सारे के सारे जो कौन सी इनकोडिंग स्कीम पे वर्क करते हैं, आस्काई इनकोडिंग स्कीम पे वर्क करते हैं। ठीक, तो व्हाट इज आस्काई, आस्काई स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या होता है, आपका 7 बिट का कोड होता है, और इसको प्रपोज किया था किसने, ANSI। ANSI मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ने 1963 में। ठीक है, द पर्पस ऑफ ASCII was to provide a standard to code various symbols like letter, number, punctuation mark, control code, etc., which are used in the most of the microcomputer, mini computer, and some mainframe computer. ASCII codes has two version, ASCII 7 and ASCII 8। तो ऑल इन ऑल बात हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे वो मिनी हो, चाहे वो मेन फ्रेम हो, सारे के सारे किस पे वर्क करते हैं, ASCII कोड पे वर्क करते हैं। और ASCII कोड में
हमारे जितने भी लेटर्स, नंबर्स, पंचुएशन और कंट्रोल की, जैसे कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट, ये जितनी भी कीज हैं इन सब को क्या किया गया है उसमें आस्काई कोड के थ्रू इनकोड किया गया है और उसको सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं। और आस्काई कोड दो वर्जन है इसके, एक आस्काई 7 है, एक आस्काई 8 है। ओके, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आस्काई कोड्स के बारे में हम बात करेंगे। जो आस्काई 7 कोड होता है वो क्या कर सकता है कि जितने भी हमारे कोड है, जैसे ए बी सी, जितने भी हमारे सिंबल है उनको हम 7 बिट का कोड लिखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि 0, अगर किसी भी लेटर का कोड 1 है तो वो क्या होगा, सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे 7 टाइम्स 0 देन 1, 0 0 0 0 0 0 देन 1। अगर मैंने लिखा 10, 10 का बाइनरी क्या होता है 1 0 0 1 0 1 0। तो 4 बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 को 1 0 1 0। बट ऑल्दो क्या है आज का एक 7 बिट रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके आगे हम 3 जीरो और लगाएंगे तो उसको टोटल 7 बिट पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 0 0 0 1 0 1 0। ओके, तो ऑल इन ऑल जितने भी लेटर और सिंबल्स हैं उनके लिए एक 7 बिट का कोड हम जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर डेसिमल वैल्यू लिखी हुई है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। बाइनरी वैल्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। जो आस्काई कोड है उसमें जो कैपिटल ए टू कैपिटल जेड है उनका जो कोड है वो 65 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है 90 तक जाता है। ये आपको लर्न होने चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज इन बेसिक जो होते हैं इनको आपको याद करना है। तो ए टू जेड का जो कोड होता है वो 65 टू 90 होता है। जैसे मैं बोलूँ डी का कोड कितना होगा, तो ए बी सी डी 65 66 67 एंड 68, तो डी का कोड क्या होगा 68 होगा। ओके, और इन अ सेम वे जो स्मॉल ए टू जेड है वो 97 से 112 तक डिकोड होते हैं। मींस अगर मैं बोलूं कि डी का कोड क्या होता है तो डी कितना होता है 68। 68 का जो बाइनरी आप निकाल के आओगे वो क्या होगी, उसकी आस्काई वैल्यू होगी। जैसे मैंने बोला आपको सी का कोड, स्मॉल सी का कोड कितना होता है, तो स्मॉल सी क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। जो 100 का जो आप बाइनरी निकालोगे वही क्या होगा सी का आस्काई कोड हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे 0 to 9 तो 48 से स्टार्ट होते हैं और 57 पे एंड हो जाते हैं। ठीक है, मींस आपको इनके बाइनरी जो इक्विवेलेंट निकलेंगे वही क्या होंगे, इनके आस्काई कोड। ठीक, सो यहाँ पर क्या है, दूसरा जो होता है इसको आस्काई 8 बिट बोला जाता है, इसको एक्सटेंडेड आस्काई भी बोला जाता है। इसमें जो होते हैं वो आपके 8 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब दोनों में फर्क क्या है देखो कि अगर कोई 7 बिट का कोड है तो टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने नंबर्स को वो को इनकोड कर सकता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर कोई हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर क्या होता है टोटल 10 नंबर को स्टोर कर सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये उसकी क्या है कैपेसिटी है होल्ड करने की। इन अ सिमिलर वे आस्काई जो होता है हमारा नंबर सिस्टम वो क्या कर सकता है, अगर वो 7 बिट है तो वो 2 की पावर 7 जो होता है इतने नंबर्स को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी है। तो 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो आस्काई जो इनकोडिंग स्कीम है वो सिर्फ 128 कैरेक्टर्स को ही क्या कर सकता है, इनकोड कर सकता है। जिसमें आप 26 तो आपके सीधे सीधे क्या हो गए ए टू जेड हो गए, और 20 ए टू जेड स्मॉल ए टू जेड कितने हो गए 26 ये हो गए, 52 ये हो गए, और 0 to 9 10 क्या हो गए आपके ये हो गए। तो 62 और 72 तो यही इनकोड हो गए, बाकी जो सिंबल्स हो गए या अदर्स थिंग हो जाएंगे वो आपके इनकोड हो जाएंगे। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितना है 128 कैरेक्टर्स को इनकोड कर पाना। बट एक्सटेंडेड आस्काई में हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं और उसमें क्या होता है 2 की पावर 8 कैरेक्टर्स को ये होल्ड कर सकता है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। तो टोटल वो 256 कैरेक्टर्स को क्या करेगा, इनकोड कर सकता है। ठीक है, जिससे हम मल्टीपल सिंबल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, नाउ नेक्स्ट आता है इसकी इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज या इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नाउ इट इज क्वाइट ऑब्वियस जो आस्काई कोड है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क कर रहा है,
इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वर्क कर रहा है, और वो उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज होती है तो उसके लिए यूनिफॉर्म कोड बना लिया। बट अगर हमें अपनी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज को भी कंप्यूटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, एक इनकोडिंग स्कीम चाहिए, एक इनकोडिंग स्टैंडर्ड चाहिए। वो स्टैंडर्ड कौन सा होता है हमारा, इसकी होता है। इसके अंदर हम जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे कन्नड़ हो, मैक्सिमम जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो हमारी किस इनकोडिंग स्कीम के थ्रू वर्क करती हैं, वो हमारी इसकी इनकोडिंग स्कीम के थ्रू हमने इसको इनकोड किया हुआ है। और ये भी क्या होता है, आपका 8 बिट कोड होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इट डेवलप इन इंडिया। ये इंडिया ने डेवलप किया है। इट आइडेंटिफाई सिग्नल एंड कैरेक्टर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। जितनी भी लैंग्वेजेस हम अपने आजकल आपने देखा है आपके मोबाइल पे भी सिर्फ हिंदी नहीं आती है, बंगाली, असमीज, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सब, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है आपका मोबाइल। तो सारी की सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो एक यूनिफॉर्म इनकोडिंग स्कीम के थ्रू वर्क करती हैं, उनका नाम है इसकी। इट आइडेंटिफाई ASCII स्क्रिप्ट अलॉन्ग विथ सबस्क्रिप्ट ऑफ वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। और ये जो टोटल होता है 8 बिट पे वर्क करता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका टोटल इस तरह से क्या है, आपका ASCII कोड्स होते हैं। एट द लास्ट हम बात करते हैं यूनिकोड, दैट इज यूनिवर्सल कोड। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ कि ऑल्दो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक यूनिकोड सिस्टम बनाया, इसको हमने ASCII बोला। बट वो जो ASCII था वो इसकी एक लिमिटेशन थी कि वो सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए बाउंड था। बट यहाँ पर हम एक नीड, जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, यहाँ पर एक नीड डेवलप हुई कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसके अंदर सारी लैंग्वेजेस आ जाए, और सारी लैंग्वेजेस के लिए क्या करें, हम एक कॉमन इनकोडिंग स्कीम बनाए। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ASCII एक अलग हो गया, इंडिया ने अपनी लैंग्वेजेस के लिए स्कीम बना दिया। सेम वे पे जापानी ने अपनी लैंग्वेज के लिए एक अलग इनकोडिंग स्कीम बनाई होगी, और चाइनीज ने अपनी लैंग्वेज सपोर्ट के लिए अलग एक इनकोडिंग स्कीम बनाई हुई। इस तरह से हर कंट्री ने अपनी अपनी लैंग्वेजेस के लिए एक अलग अलग इनकोडिंग स्कीम बनाई हुई होगी। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर भी एक यूनिवर्सल स्कीम नहीं है, एक यूनिफॉर्म स्कीम नहीं है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्कीम चल रही है। सिर्फ इंग्लिश के लिए एक कॉमन स्कीम है, वो है ASCII। तो यहाँ पर हमने किया किया हमने ऐसा विजन रखा कि ये जहाँ पर हम क्या कर पाए कि एक यूनिफॉर्म इनकोडिंग स्कीम डेवलप कर पाए जिसके अंदर सारी की सारी लैंग्वेजेस आ जाए, और उनके लिए क्या रखें, हम एक कॉमन और सेम इनकोडिंग स्कीम रखें। और वो जो स्कीम थी, वो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कॉन्सेप्ट को हमने बोला यूनिकोड इनकोडिंग स्कीम। इसको हमने, यूनिकोड मीन्स होता है यूनिवर्सल कोड, और इसके अंदर सारी लैंग्वेजेस जितनी भी वर्ल्ड में बोली जाती हैं, जितनी भी वर्ल्ड में नोन है, सारी की सारी लैंग्वेजेस के लिए ये एक कॉमन इनकोडिंग स्कीम है। ओके, तो यूनिकोड इज अ वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड created by the Unicode Consortium in 1991. Unicode has the capacity to include all the symbols and all the characters from all the script of all the languages of the world. मीन्स जितनी भी लैंग्वेजेस वर्ल्ड में है वो जिस भी तरह से लिखी जाती हैं उनमें जितने भी सिंबल एंड कैरेक्टर्स इंक्लूड होते हैं, उन सारे के सारे कैरेक्टर्स और सिंबल्स के लिए हमने क्या किया है, उनको एक कोड प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, नाउ यूनिक, अब ऑब्वियस सी बात है कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसके लिए हमें बहुत सारी क्या चाहिए होंगी, यूनिकोड की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए। बिकॉज इतने सारे वर्ल्ड के लिए एक यूनिक कोड डिफाइन करना क्या है, एक बिग टास्क है। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, बाकी से क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। बिकॉज मैक्सिमम ASCII की कैपेसिटी कितनी थी, 256 कैरेक्टर्स थी। इसकी की भी कितनी थी, 256 कैरेक्टर थी। बट यहाँ पर जो यूनिकोड है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1110 एंड 000। ठीक है, ये कैपेसिटी क्या होती है
आपकी यूनिकोड की होती है। यहाँ पर वो इतने करेक्टर सिंबल्स को और इमोजीज को क्या कर सकता है, इनकोड कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज हम यूज करते हैं अपने मोबाइल्स में चैटिंग के ड्यूरेशन में, वहाँ वो उन सब के लिए भी क्या होता है, एक अलग कोड डिफाइन है, और वो कोड किस में इंक्लूड है, यूनिकोड में आपका इंक्लूड है। अब बेसिकली यूनिकोड के 3 फॉर्मेट होते हैं, UTF-8 होता है, UTF-16 होता है और UTF-32 होता है। और यहाँ पर UTF की फॉर्म आती है यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वर्ल्ड वाइड होता है UTF-8, और यही क्या होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट यूजफुल है और एफिशिएंट है कंपेयर टू 16 एंड 32। Okay, and UTF-8 has become the standard character encoding scheme used for web, and it is also the default encoding used by many software program। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इन सब में कौन सा है, UTF-8 है। और इंटरनेट में जो यूज होता है स्टैंडर्ड, वो कौन सा होता है, UTF-8 ही होता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है आप देख सकते हो कि ये सारी जो चीज़ें हैं यूनिफॉर्म कोड में है। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, UTF-8 क्या होता है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।